Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss two different topics of this chapter, Era of One Party Dominance. The first topic is tolerance and management of factions. Faction means a group of people who have different views. Second, emergence of opposition parties. So let us start our first topic, tolerance and management of factions. Faction means groupism. So this collision like character of Congress gave it an unusual strength. ये जो collision थी, collision क्या करती है? Here character means nature. जो nature था कांग्रेस का, collaboration, collision means collaboration. ये क्या करता है? Gave Congress it an unusual strength. उसे एक असाधारण सी ताकत देता है ये. And फर्स्टली सबसे पहले अ कोलिजन अकोमोडेट्स ऑल दोज हु जॉइन इट, कि जो भी आए कोलिजन क्या करता है, उसे अपने अंदर एडजस्ट कर लेता है. इफ़ एनी पर्सन फ्रॉम अदर पार्टी केम टू जॉइन द कांग्रेस, देन कांग्रेस पार्टी गेव welcome to that person. So therefore it has to avoid any extreme position and strikes a balance on almost all issues. So it was an important task to maintain the balance on all issues, and compromise and inclusiveness are the hallmark of a coalition. Thus this strategy put the opposition in a difficulty. That's why opposition party finds itself into a confusion in difficulty, because Congress gave warm welcome to every person who want to join Congress party, whether he belongs to any opposition party. So anything that the opposition wanted to say, जो भी opposition party कुछ कहना चाहती थी ये होना चाहिए, so would also find a place in the program and ideology of the Congress. कांग्रेस उसी चीज़ को अपनी पार्टी के अंदर और अपनी आइडियोलॉजी में जगह देती थी. So secondly, in a party that has a nature of collision, there is a greater tolerance of internal differences, and ambition of various groups and leaders are accommodated. So if there is a party on this grand level, then there is a second task to manage each and every issue properly, manage करना issues को, and it will increase the power of tolerance. If there is a group that consists of many groups of different people, then there will be eternal differences, and every person has different expectations. So in this time it is very difficult task to maintain a balance, and but sometimes it help to increase the tolerance power of the main organization, and leaders are accommodated, and the Congress did both these things during the freedom struggle and continued doing this even after independence. लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये इन चीज़ों को आज़ादी के लिए जो संघर्ष हुआ था उसके दौरान सीख लिया था, तब से इसको लास्ट तक, इंडिपेंडेंस तक इसको कंटिन्यू रखा था. मतलब जो भी कोई ग्रुप इनके पास आता है वो उसको कांग्रेस में शामिल कर लेते थे, हालांकि जानते हुए कि एवरी ग्रुप हैज़ डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस. That's why even if a group was not happy with the position of the party or with its share of party, अगर कोई ग्रुप अपनी पोजीशन से खुश नहीं था, रैंक से खुश नहीं था, अपने शेयर से खुश नहीं था कि मेरे को पावर्स कम मिल दी गई हैं, सो इट वुड रिमेन इनसाइड. वो हमेशा पार्टी के अंदर रहना पसंद करता था, एंड फाइट द अदर ग्रुप्स रादर दैन लिविंग द पार्टी. पार्टी छोड़ने के बजाय उसी पार्टी में दूसरे ग्रुपों से लड़ना पसंद करता था, ताकि अपनी एक अच्छी पोजीशन वो दोबारा से रीगेन कर सके. So these groups inside the party are called factions. इन ग्रुप्स को क्या बोला गया था? Factions means you can say faction means groupism when there are many groups of different ideology, different thoughts, different expectation. The collision nature of the Congress party tolerated and in fact encouraged various factions. ये जो collision nature था कांग्रेस का, गठबंधन का नेचर था, इसने क्या किया? Of the Congress party tolerated
इससे उसकी सहनशीलता डे बाई डे इंक्रीज होती गई एंड इनफैक्ट इनकरेज वेरियस फैक्शंस, और कई ग्रुपों को उसने क्या किया, इन उत्साहित भी किया। एंड सम ऑफ दीज फैक्शंस वर बेस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन बट वेरी often these factions were rooted in personal ambitions and rivalries. Means some groups joined Congress for their different ideology and their personal ambitions and rivalries. Due to these things, other groups came into existence that were also the part of Congress party. Instead of being a weakness, eternal factionism became a strength of the Congress party. तो ये जो ग्रुपिज़म था, ये वीकनेस बनने के बजाय कांग्रेस पार्टी के लिए एक स्ट्रेंथ बन गया, कांग्रेस पार्टी का प्लस पॉइंट बन गया। Since there was room within the party of various factions to fight with each other, and it means that leaders representing different interests, जो leaders थे वो अलग अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते थे, विचारधारा को रिप्रेजेंट करते थे, आइडियोलॉजीज को remain within the Congress rather than go out and form a new party. Means leaders who have different opinions, different ideology, they don't want to leave Congress, वो कांग्रेस को छोड़ना नहीं चाहते थे। एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स यूनिट्स ऑफ कांग्रेस वर मेड अप ऑफ न्यूमरस फैक्शंस, जो अधिकतर जो इकाइयाँ स्थापित की गई थी कांग्रेस की वो अलग अलग विचारधाराओं की थी। एंड द फैक्शन टुक डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजीशन मेकिंग द कांग्रेस अपीयर एज ए ग्रांड सेंट्रिस्ट पार्टी। लेकिन इसी कोलिजन ने क्या कर दिया, इस फैक्शंस ने क्या कर दिया, कांग्रेस को एक बहुत बड़े लेवल की पार्टी बना दिया था, केंद्रीय पार्टी बना दिया था। एंड द अदर पार्टीज प्राइमरली अटेम्प्टेड टू इन्फ्लुएंस दीज फैक्शंस, जो बाकी जो पार्टीज़ थी वो क्या करती, इन फैक्शंस को, मतलब अदर ग्रुप्स को क्या करती, हमेशा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती थी। एंड देयर बाय इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग फ्रॉम द मार्जिन्स, एंड दे वर फार रिमूव्ड फ्रॉम द एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी। वो हालांकि अथॉरिटी से मतलब पावर से बहुत दूर थे, लेकिन they were not alternatives to the ruling party, but they are failed to represent themselves as the alternate of the ruling party. अपने आप को रूलिंग पार्टी का एक दूसरा विकल्प के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सके। Instead they constantly pressurized and criticized and censored एंड इन्फ्लुएंस द कांग्रेस। उन्होंने क्या किया, कांग्रेस को प्रेशराइज किया, क्रिटिसाइज़ किया और प्रभावित किया। एंड द सिस्टम ऑफ द फैक्शंस फंक्शनड एज बैलेंसिंग मैकेनिज्म विद इन द रूलिंग पार्टी। लेकिन इस फैक्शंस ने क्या किया, कांग्रेस के अंदर हर चीज़ के बैलेंस को मेंटेन करने पे उसकी हेल्प की। सो इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ इलेक्ट्रल कंपटीशन द कांग्रेस एक्टेड बोथ एज रूलिंग पार्टी एज वेल एज अपोजिशन। फर्स्ट इलेक्शन में कांग्रेस ने एज ए रूलिंग पार्टी भी रिप्रेजेंटेशन दिया अपना और एज ए अपोजिशन भी दिया था। दैट्स वाई द पीरियड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द कांग्रेस सिस्टम। इसलिए जो फर्स्ट पीरियड है, इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। मतलब कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस प्रणाली भी कहा गया इस पीरियड को। सेकंड टॉपिक, एमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज। As we have noted above, it is not that India did not have opposition parties during this period. ऐसा नहीं था कि इस टाइम के दौरान भारत में अपोजिशन पार्टी नहीं थी। While discussing the result of the elections, we have already come across the names of the many parties other than the Congress. कांग्रेस के अलावा कुछ और पार्टीज भी अस्तित्व में थी। And even then, India had a larger number of diverse and vibrant opposition parties. भारत में काफ़ी डिफरेंट पार्टीज़ थी जिनके विचारधाराएं काफ़ी अपोजिट थी। एंड देन मैनी अदर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज़ की बजाय, एक यहाँ पे बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली की बजाय वैसे यहाँ पे कुछ अदर अपोजिशन पार्टीज़ थी। लेकिन सम ऑफ दीज हैड कम इनटू बीइंग इवन बिफोर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1952। कुछ 1952 के इलेक्शन से पहले आ गई थी। एंड सम ऑफ दीज पार्टीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री इन द 16th एंड 17th, कुछ बाद में आई थी। एंड द रूट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द नॉन कांग्रेस पार्टीज ऑफ टुडे कैन बी ट्रेस्ड टू वन और द अदर ऑफ द अपोजिशन पार्टी ऑफ 1950। लेकिन इसकी जो मेन फाउंडेशन है, जो मेन रूट्स थी, वो 1950 के दशक की किसी न किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती हैं।
So all these opposition parties succeeded in gaining only a token representation in the Lok Sabha. ये जो ऑपोजिशन पार्टीज थे लिटिल बिट अपना रिप्रेजेंटेशन दे पाई थी ये लोकसभा के इलेक्शंस के अंदर एंड स्टेट असेंबली ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड येट देयर रिप्रेजेंस प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द सिस्टम। लेकिन इनकी प्रेजेंस ने क्या कर दिया, एक डोमिनेंट रोल प्ले किया था एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को बनाए रखने के लिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम को बनाए रखने के लिए, बिकॉज अपोजिशन पार्टी ऑलवेज क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इफ़ गवर्नमेंट पास एनी अनफेयर लॉ अगेंस्ट द public, and this kept the ruling party under check and often changed the balance of power within the Congress. So इसी कारण क्या हुआ, जो रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस उसके अंदर जो पावर मेंटेनेंस थी, पावर बैलेंस था, वो चेंज डे बाय डे होता गया, एंड बाय कीपिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव लाइव, और लोकतंत्र के विकल्पों को भी जिंदा रखा गया। दिस पार्टी प्रिवेंटेड द रिसेंटमेंट विद द सिस्टम फ्रॉम टर्निंग एंटी डेमोक्रेटिक। ये जो पार्टी थी प्रिवेंटेड द रिसेंटमेंट, इन्होंने क्या किया, इन दलों ने अपने जो रोष को लोकतंत्र विरोधी बनने से रोका, एंड दीज पार्टीज ऑल्सो ग्रूम्ड द लीडर्स हु वर टू प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द शेपिंग ऑफ अवर कंट्री। सो these groups prepared so popular leaders who gave a new picture to the politics of India. इन्हीं दलों ने ऐसे ऐसे नेता भारत को दिए जिन्होंने भारत की राजनीति की तस्वीर ही बदल दी, एंड इन द अर्ली ईयर्स देयर वाज अ लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एंड दोज ऑफ अपोजिशन। स्टार्टिंग में क्या था, कांग्रेस और अपोजिशन के लीडर्स के बीच में काफ़ी रिस्पेक्ट होती थी एक दूसरे की, एंड द इंटरनल एंड इंटरिम गवर्नमेंट दैट रूल्ड द कंट्री आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस, जो अंतरिम सरकार ने जो लास्ट में रूल किया था भारत के अंदर, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंक्लूडेड ओपोजिशन लीडर्स लाइक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन द कैबिनेट, एंड जवाहरलाल नेहरू often referred to his fondness for the socialist party and invited socialist leaders like Jayaprakash Narayan to join government. And this kind of personal relationship with and respect for political and adversaries declined after the party competition grew more intense. As soon as the party competition became more intense, then the respect also start declining, and this was thus the first phase of the democratic politics in our country was quite unique. हमारा जो फर्स्ट फेज़ था कंट्री के अंदर लोकतंत्र का, वो क्या था, टोटली यूनिक था, एंड द इंक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ नेशनल मूवमेंट लेड बाय द कांग्रेस इनेबल्ड it to attract different section group and interest, making it a broad based social and ideological coalition. मीन्स जो राष्ट्रीय आंदोलन के चरित्र के कारण ही कांग्रेस की तरफ विभिन्न समूह जो थे, वर्ग थे, हित के लोग आकर्षित होते हुए चले गए। मीन्स एवरी पर्सन वांट टू बी अ पार्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी, and it play a key role of the Congress in the freedom struggle, thus give it a head start over others. So जो कांग्रेस जो रोल प्ले किया था ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, इट ऑल्सो गेव स्ट्रेंथ टू Congress. It also gave favor to Congress, and as the ability of Congress to accommodate all interest and all aspirant for political power steadily declined. As soon as the Congress leader just tried to avoid the people of other interest and expectation, in this way the importance of Congress, popularity of Congress was decreasing day by day. इस तरीके से कांग्रेस की जो पॉपुलरिटी थी वो भी डे बाय डिक्रीज होती चली गई। दस इस प्रकार से कांग्रेस डोमिनेंस कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली वन फेज इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, एंड वी शैल कम टू द अदर फेज इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस टेक्स्ट बुक. Thus Congress could maintain its dominance constitute only one phase in the politics of the country. Means there was dominance of Congress party only for one phase in the politics of the country. So dear students, today we have discussed two different topics, so I request you to listen it and read it twice and thrice to make understand this chapter. So till then, thanks and have a nice day.